وبركاته ومغفرته وطول عمره. وعلیکم السلام. الحمد لله الذي جعل الأخلاق والأولين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر من نور الله. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں دو باتوں کو خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. دو بات، زیادہ نہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ، بکریاں جب کیا چرتی ہیں جنگل میں، بکریاں جب جنگل میں چرتی ہیں، پورے جماعت کے ساتھ جب چرتی ہیں، بھیڑیے کی مجال نہیں کہ آ کر حملہ کرے. ڈرتا ہے اس سے مل کے مار ڈالیں گے. جب ایک بکری الگ ہو گئی اپنے زیر سے، اپنی جماعت سے حملہ کر کے لے کے چلے جاتا. اس لیے اللہ کے حبیب ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، کیا تم ہمیشہ مل جل کر ایک کے بعد ایک جماعت میں انفرادی طور پر نہ بیٹھے پیچھے ہیں، سامنے کے کرسیاں خالی. آپ فیصلہ کرنا کہ آپ کو کہاں بیٹھنا چاہیے. نہیں آتے ہوں، جب تک نام لے کر تمہیں نہیں بولیں گے اس وقت تک سامنے کوئی بھی آتے نہیں، بولنا پڑتا. انو آؤ بھائی، انو آؤ بھائی، انو آؤ بھائی، بولے تھوڑے دینا. جی ابھی خالی ہے جگہ، یہاں جگہ خالی ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی پیچھے نہیں رکھنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی. دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قانون میں فرض دیا، فرض قانون دی. فرض کا مطلب ہے کسی حال میں کرنا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں تو عذاب ہوتا ہے. بات سمجھ میں گناہ ہوتا ہے تو کیا چیک ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے کہ نا. بات سمجھ میں آئی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا عذاب ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس کی اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے. نماز پڑھو بول رہا ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھو بول رہا ہے، پڑھتے نہیں ہیں.
ज़कात, हज, रोजे रखो बेटा, रखते नहीं, हम बहाने कर रहे हैं नहीं। मगर दो बातें ऐसी हैं, कितनी बातें? दो बातें ऐसी हैं जो अल्लाह कर रहा है। कितनी बातें? अल्लाह कर रहा है। हर नेकी को कबूल करने वाला वही, अब वो खुद कर रहा है तो वो नेकी का मकाम क्या होगा जरा सोचो। पहली बात, वो अपने हबीब पर हमेशा 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 दरूद भेज रहा है और हमको नसीहत कर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पर दरूद भेज रहा है, ये पढ़ रहा है। भेजना है तो फिर किसी के पास भेजना, तर्जुमा करे तो ऐसा करे, हर में आया उन किसके पास भेजना, फिर पढ़ रहा है। भेजना तो फिर दूसरे पास भेज जाना हो, लेने वाला उनमें किसी बात तो पढ़ रहा है, करे तर्जुमा। इस वक्त करे तो झरे खेलना, सुनते की बोला नहीं खेलना। आप लोग हमारी संगत मेरे को सिकेट क्या करते हैं? तर्जुमा ऐसा करो, क्या कर रहा है? कर रहा है नहीं, भेजना तो तुम्हें समझे, फिर दूसरे की शिकत करने की। नाउज़ुबिल्लाह। एक तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा दरूद पढ़ना चाहिए। और वो तफसील में जाऊंगा तो मेरा असल मौजूद खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना समझो। एक दूसरी बात, वो युहिब्बुनहु दो बातें। ऐ ईमान वालों, तुम इस बात को ज़हनशीं कर लो। ऐ ईमान वालों, तुम इस बात को ज़हनशीं कर लो, अल्लाह अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करता है और वो बंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। समझ मेरी बात? ये दो काम कर रहे हैं। अब हम एक काम तो कर रहे हैं, कभी कभी दरूद पढ़ लेते हैं, नहीं कभी कभी पढ़ लेते हैं, समझ में आ रही बात? मगर उसके महबूब बंदों से मोहब्बत करने का तस्वीर हमारे पास नहीं। उसके बंदों से मोहब्बत करना भी ये अल्लाह की सुन्नत, इससे बड़ी कोई सुन्नत है ही नहीं। वो फरमाता है क्या? जिब्राइल को बुलाकर फरमाता है, क्या फरमाता है कि वह में रखो। जिब्राइल को बुलाकर फरमाता वही लाते फरिश्ता, वही भेजना करा तो जहां जिब्राइल हो वहां भेजता, वही का मकाम, उसकी गुफ्तगू का मकाम, उसके कलाम का मकाम ये सोचो तुम्हें। जहां जिब्राइल है उनको बोल देता, ये पैगाम है मेरे महबूब तक खिलाफत पहुंचा। लेकिन जब उसके बंदों से मोहब्बत का मामला होता है, जिब्राइल तुम मेरे पास हो, जिब्राइल तुम आओ, बोलता है। जिब्राइल से बोलता है, वही भेजता है। अल्लाह भेजने का लफ्ज़, ये लफ्ज़ को क्या पकड़ कर बात करेंगे तो बात समझ में आती है, वरना भेजना और लेना लेना सब अल्लाह बंदे को नहीं है। वैसे एक एक लफ्ज़ का एक माना है। बुलाकर मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। अब सारे फरिश्ते करते हैं, वो मकाम हो जाने के बाद फिर जिब्राइल को बुलाता है, भेजता है। मामला अर्श का हो गया, फर्श का नहीं। अब जाओ फर्शियों को हुक्म दो, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम इनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का माना क्या है? मोहब्बत
کرنے کا معنی جو نہ خالی محبت 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 کا معنی بول لیتے ہیں، لیکن محبت کا معنی کیا؟ محبت کا معنی سب سے پہلا ان کا ادب کرو، جیسا کہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اب اگر اس تفصیل میں تو جانا نہیں چاہتا، ایک بت بتا رہا ہوں یار۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک قطرہ بھی پانی کے آپ کے وضو کا نیچے جن صحابہ نہیں دیتے تھے۔ یہ بات تو کیا صرف احادیث میں آپ سن چکے ہیں، علماء سے، فضلاء سے، مقررین سے، محدثین سے سن چکے ہیں، ایک قطرہ بھی گننے نہیں دیتے تھے پانی۔ حضور کے وضو کے ایک قطرہ بھی نیچے گرنا بے وضو سمجھتے تھے۔ حضور تھوکتے تھے تو اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہروں کو مل لیتے تھے۔ آگے جانے کی ضرورت نہیں، یہ ادب بتا رہے ہیں۔ بزرگوں کا ادب کرو۔ دوسری بات، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اطاعت اور فرما برداری کا معنی انہوں جو کاموں کو انجام دیے ہیں وہ کرو، جس سے رک گئے ہیں تم بھی رک جاؤ، وہ مت کرو۔ آج حال ہمارا کیا ہے؟ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، ہم کون سے کام کر رہے ہیں، کون سے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم اپنے آپ ہی سے پوچھ لیں گے تو معلوم نہیں۔ تیسری بات، محبت کی آتی۔ محبت کا معنی، محبت کا معنی بتاؤں میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دائی حلیمہ حضور کو لینے کے لیے جب آئی تو دائی حلیمہ کے سامنے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دائی حلیمہ تو تو آئی ہے، میں نے قریش کے قبیلے کو دیکھا ہے اور میرے خاندان کو دیکھا ہے، یہ سارے قریشیوں میں پھر چکی ہوں، مگر جو چہرہ محمد کا میں نے دیکھا ہے ایسا چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ماں کا کہنا، ماں اپنے بیٹے کو بول سکتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، آمنہ تو قریش کے قبیلے میں گھومی ہے، خاندان میں گھومی ہے، میں خاندانوں میں گھومی ہوں، میں محلوں میں گھومی ہوں، میں قریوں میں گئی ہوں، کئی کو میرا کام ہی دودھ پلا کر کیا دولت حاصل کرنا۔ ارے میں نے ایسا چہرہ تو شان کے مقابلے میں بھی کبھی نہیں دیکھا، جو خوبصورتی یہاں وہاں نہیں دیکھا۔ حضرت مطلب آ گئے، حضرت مطلب آ گئے، بولے ارے تم لوگ کیا قریش کی بات کر رہی، تم کیا قریوں کی بات کریں؟ یمن گیا ہوں، شام گیا ہوں، سارے مصر گیا ہوں، ارے سارے شہروں کو کھنگال دیا ہوں، جو بات میرے محمد کے چہرے میں میں دیکھ رہا ہوں کسی میں میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل لائے ہوئے تقلب المشارق الارض ومغاربها، لوگوں تم جو ہے فرش والے تم اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ آفا کہا گردیدہ، ارے میں نے سارے ساتھ آسمانوں کو ٹٹولا ہے، آدم کو دیکھا ہے، نوح کو دیکھا ہے، ان کے رسولوں کو دیکھا ہے، 1,40,000 کو دیکھا ہے، مگر جو بات محمد کے چہرے میں ہے آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدا نے فرمایا تم اتنی گفتگو کر رہے ہو، تم لوگ بول رہے ہو ارے جس سانچے کو میں نے محمد کو بنایا ہے وہ سانچے کو میں نے توڑ دیا ہے۔ الوہیت میں جیسا میرے جیسا کوئی نہیں، رسالت میں میرے حبیب کے جیسا کوئی نہیں۔ دوستو، آج انہی کے نسل کی تاریخ کو میں یہاں کچھ عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے۔ کچھ گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پورے خاندان کی ایک صفت، ایک ہی صفت جو تمام میں مجموعی اعتبار سے گردش کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ قطبیت۔ سبحان اللہ۔
कुतुबियत, कुतुब किसे कहते हैं? चक्की, हर एक के घर में होंगी चक्की, जो शादी में पहले चक्की दिया करते थे, अब ग्रिंडर आ गया है, अब वो नहीं देते थे। उसमें जो मुट्ठी होती है जिसमें रख कर चक्की को फिराया जाता है, दस्ता, उसे बोलते हैं कुतुब, जो पूरी चक्की को फिराती है। समझ रही? ये तमाम के तमाम अकादरी बुजुर्गान दीन अख्ताब वेले उनको कहा था अख्ताब, कुतुब की जमा अख्ताब। ये सब चक्की को चलाने वाले, यानी दुनिया के निजाम को चलाने वाले। ये कुतुबियत ये है। अब इनके हर एक की तारीख में देखेंगे आप, दुनिया को कैसे चलाते थे, दुनिया के निजाम को कैसा बरकरार रखते थे, और कैसे क्या है निजाम दुनिया को अपने क्या है तो अंदाज से उसको पेश करते थे। सबसे पहली जात सैयद शाह अब्दुल लतीफ नकवी कादरी बीजापुरी अलैहि रहमतुल्लाह, ये खानदान बीजापुर से आया। इसमें आपके साथ आपके भाई वगैरह वगैरह और आपके साहिबजादे सैयदना अबुल हसन रुकनुद्दीन सैयद शाह कुर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी आपके साथ आए। पहले बीजापुर से निकले, सानूर आए, सानूर से आए, आरकाट आए, आरकाट आने के बाद आपको हुक्म हुआ थे बेलूर चले जाए। हुक्म हुआ, आपको हुक्म दिए कौन? कायनात सिर्फ इस बात के ख्वाहिशमंद है, कायनात से, कायनात का हर जरा कि किसी तरह रसूल का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक रसूल का दीदार हो जाए। कायनात की मर्जी है, कायनात की ख्वाहिश है, ये हर फर्द की ख्वाहिश है। मगर कुर्बान जाइए नुफूस कुदसिया पर अल्लाह के हबीब आकर हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ नकवी कादरी बीजापुरी अलैहि रहमतुल्लाह से कार में आकर फरमाते हैं, आप बोले जाएंगे सब आरजू करते हैं आका के दीदार की, मगर दीदार खुद होकर दिखाने के लिए सैयद शाह अब्दुल लतीफ के कार में आ रहे हैं। कैसी मुकद्दस शख्सियत होगी। वहां से आए ये लोग, आज जो मकाम है वहां फिर ख्वाब में तशरीफ लाए सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर आपको नक्शा बता दिया। देखो यहाँ खानका बनानी है, यहाँ मस्जिद बनानी है, यहाँ मदरसा बनाना है, यहाँ अपनी रिहाइश के इंतजाम कर लेना है, क्योंकि तुम्हारी आल औलाद से सारी कौम और मिल्लत को एक जमाने तक फैज पहुंचना है और फैज पहुंचता रहेगा। अब आज जो भी मकाम वहां बनाया गया है, बन चुका है, ये किसी और आम इंसान का बनाया है नहीं। वो इबादतें अल्लाह के रसूल के इशारे पर, उनके कहने पर, उनका बनाए हुए बताए हुए नक्शे पर बनाए गए हैं। हम इस मकाम को चाहे उस नजर से नहीं देखना, आका की नजर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ नकवी कादरी अलैहि रहमतुल्लाह रखते सफर खोल दिए, वही रहे। जंगल था, सुबह चरवाहे आए, आने के बाद देखा मवालिक कुछ लोग बैठे हुए हैं, नए आदमी आ जाते हैं, छेड़खानी करना तो आम बात है, हमारे पास भी वही होता है, लेकिन वहां भी वही हुआ। चरवाने के वास्ते जो जानवर आए, चरवाहे छोटी छोटी कंकरियां लेकर के आए, सैयद शाह अब्दुल लतीफ नकवी कादरी बीजापुरी अलैहि रहमतुल्लाह की तरफ फेंकने लगे। चरवाहे चराने वाले बकरियों को क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं। इनके हाथों में पत्थर है फेंकने वालों के, जी फेंकने वालों के हाथ में पत्थर है, मगर जिस पर फेंक रहे हैं उसकी गोद में जाकर फूल बनकर गिर रहा है। इस पत्थर को
फूल बनाने वाली बात करते हैं, ये बताइए। आमतौर पर मुक़र्रिरीन हजरात हमेशा 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 ऐसे वाक़यात कुरान हदीस को पेश करते हैं। मैं उसे माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, पेश करो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो कुरान है, हदीस है, आमन्ना सदकना सल्लल्लाहु, मगर उसके तहे में छुपे हुए, उसके पर्दे में छुपी हुई हकीकतों को भी ध्यान में रखो। ताइफ में गए लोग, पत्थर फेंकने लगे, सरकार के जिस्म को लगने लगा, जिस्म से खून निकलकर जूतों में आया। तारीख बोल रही है ये, कौन बोल रहे? उनकी आल औलाद जो उनके कदमों के खाते भी नहीं पहुंचती, उनका आलम ये है, पत्थर यहां भी पत्थर ही फेंके, मगर बना क्या? वहां पत्थर कैसे नहीं बने भाई? तुम्हारी नजरों में वो पत्थर है, मगर उन पत्थरों के आरज़ू और तमन्ना ये थी, बारगाह रसूल में हर चीज को तेरे हबीब के चेहरे से, उनके जिस्म से बस होने की शहादत नसीब फरमाया, हमें भी कुछ अता हो जाए। अल्लाह उनको शहादत बख्शने के वास्ते भेजता रहा, जाओ तुम भी क्या फर्ज। उसके बाद दूसरी बात अर्ज करूं, सैयद शाह अब्दुल लतीफ नफी कादरी बिजापुरी अलैहि रहमत व रिज़वान उतबियत के मकाम पर फाइज थी आपकी ज़ात बाबरकत। गए, इंतकाल वही हो गया आपका, आप ले जाकर आपको शहर की जामिया मस्जिद में दफन किया गया। दफन आप तो हो गए, रात को ख्वाब में उनके सरहाने सैयद शाह अब्दुल लतीफ कादरी बिजापुरी अलैहि रहमत व रिज़वान के सरहाने एक बुजुर्ग के हज़रत पहले ही से दफन किए गए, उनके पैर आपके सराहने हो गए। उन्होंने ख्वाब में आए, मस्जिद के मुतवल्ली और काजी के आकर बोले, एक बुजुर्ग के सराहने मेरे पैर हो गए हैं, बेअदबी हो रही है। जमाना हुआ इंतकाल होकर इनका इंतकाल होके जमाना हो गया है। अब दफनाए गए हैं सैयद शाह अब्दुल लतीफ कादरी, तो ख्वाब में आकर मौजूदा उस मस्जिद के मुतवल्ली और काजी के ख्वाब में बोल रहे हैं, पहले मुझे निकाल कर मुझे उनके कदमों में दिया। आप लोगों का ख्याल, नौजवानों का ख्याल, हमेशा नौजवान कहते मर गए मिट्टी में मिल गए। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? इस सूरत को आप उठवाते तो आप इन हालात को जो आकर ख्वाब में मौजूदा लोगों को बेदार कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल कर उनके कदमों में दफन करो। भाई इस काबिल हूं तो चाहे बोले करके उनके कदमों में आ जाओ। ये करामत है या उनकी और नहीं? करामत है ये। फिर आजकल के नौजवान करामतों को मानने से इनकार क्यों करते हैं? कुरान और हदीस चाहिए, करामतों के लिए कुरान और हदीस सुनना चाहती है ना जी। आसिफ बिन बरखिया वली है, किसके? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने। उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो सहीफा नाजिल हुआ उसका कुछ हिस्सा याद था, कुछ हिस्सा याद था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस आ रही थी तो बोले जिन्नातों को, बिल्किस आ रही है, उसका तख्त ले आकर मुझे कौन पहुंचाएगा, उसके आने से पहले मैं वो तख्त उसे सामने दिखाने के लिए रखना चाहता हूं। जिन्नात बोला आप ये मस्जिद खत्म करे तक मैं ले आता हूं। मस्जिद घंटे में खत्म होती थी, 2 घंटे में खत्म, किसे पता। आसिफ बिन बरखिया वली उस जमाने के बोले सरकार पलक झपके तक मिला लो, कबला हल्की मारने, पलक मारने को आप पलक मारने तक में हाजिर करोगे, ला दिए। बाद भी कभी ला दीजिए।
क्या बोलेंगे उसे, सुभान अल्लाह, क्या बोलेंगे उसे, ये क्या करामत, कौन करा रहा है करामत, अरे अल्लाह ने तो दे दिया है करामतुल्लाह, ये हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह के करामत का ज़ुहूर सुबूर ये कानून इलाही है, सुन्नत इलाही है। आप लोग ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, बुजुर्गों की संगत में सोबत में बैठकर सीखो इल्म। हजरत बहुत बड़े मफसर खुदा हैं, अल्लाह माफ करना, समझे, फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमीन, बोलो अन्नासु, बोलो यार, कुल्लुहुम मौता, तमाम के तमाम इंसान मुर्दा रहे। कौन है मुर्दा, तमाम का तो इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, फिर तुम्हें हमें नहीं गए तो समझेंगे, कोई सब के सब मुर्दा रहे, इल्लल आलिमीन, सिवाय आलिमों के। आलिम को तो क्या मतलब, ये सब जानने वाले, ये सब जानने वालों को आलिम दो। फिर उसके बाद फरमाते तमाम के तमाम आलिम सोए हुए हैं, कौन जो काम नहीं कर रहा, काम कर रही हूँ, हमें सब काम कर रही सोई। फरमाते हो ये बर्बाद होने वाले हैं, इल्लल आमिलून, सिवाय अमल करने वालों के। आलिम भी होना, अमल भी करना, तीनों। फिर तमाम के तमाम आमिल खसारे में है। इन्हों भी क्या आज अमल खा लिया, अमल का तो क्या समझे, बगैर पढ़े लिखे के अलग अमल करे तो क्या मतलब, जा रही मैं मस्जिद के 4 रकात पढ़ना आ जा रही, क्या पढ़ा तू, क्या नहीं पढ़ा, क्या मांगा, क्या नहीं, किसी मांगा हो ना हो। जानना इल्लल मुखलिसून, इखलास वाले, ये लोग बच जाती, बाकी तो खसारे में। फिर उसके बाद जितने भी मुखलिसीन है वो तमाम के तमाम खतरे में हैं। उनको क्या खतरा, ये तमाम कर आलिम है, आमिल है, इखलास है, मगर तकब्बुर है। इल्लल मुतकब्बिरीन, आई एम सो, मैं बड़ा, मेरे पास आना, मुझे पूछना, मुझे दावत देना, मुझे बुला लेके जाना। फरमाते हैं ये मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, ये सब बर्बाद होने वाले हैं सिवाय आजिज़ी करने वालों के, नियाजमंदी करने वालों के, इंकिसारी करने वालों के। ये जमात सही मानों में महफूज मानों होने वाली है, और ये सिफात इन लोगों में, समझेगा। दूसरी शख्सियत है आपकी हजरत सैयद शाह अबुल हसन रुकनुद्दीन कुर्दी कादिरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग। शरीयत की इस कदर पाबंदी, कोई खिलाफ वर्जी करता तो बर्दाश्त नहीं करती। आजकल पंजों का मामला कम हो गया है, पंजे उठाना नाक ना करना नहीं। एक बात याद आ रही है, मेरे वक्त साध्यता की नहीं थी, इस वक्त से मैं समझ रहा हूँ, अल्लाह करे कि वक्त में बरकत अता फरमाए मेरा मालिक। इसलिए तो बुजुर्गों को अल्लाह हमेशा वक्त में बरकत देता, वक्त में बरकत देता है। सरकार के मेरा वाक़या 30 साल का हो, कितने साल का, मगर क्या सरकार जाके आ गई, जल्दी हल रही थी, विस्तार ग्रहण था, पानी बह रहा, क्यों, अल्लाह बरकत दिया था, वो अल्लाह माफ करवाए। तो हज़रत कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में पंजे लेको मकान के ऊपर से, कुर्दी ये मकान जो है उसके ऊपर से लोग नाचेता जा रहे थे, आकर हजरत समझाए ये सब गलत काम है, नहीं करना। सुने नहीं, नए में सुनते लेकिन लट्ठा फिराने किसी को नहीं आता। सबसे पहले अल्लाह के हबीब और गुनाहगारों के कबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने
صحابہ کو नसीहत फरमाई, अल्लिमू औलादकुम, तुम अपने औलाद को सिखाओ अल-रिमायता, लकड़ी चलाना, वल फुरूशता, तलवार चलाना, सुभान अल्लाह। और सबाहता, गालिबन तैरना, ये चीजें सिखाना है। एक तो है हम ना लट्ठा फिरा, तो लकड़ी फिराना आता नहीं, चाबी फिराना आता नहीं, लट्ठा फिराते हैं। एक भी नहीं है, सुन्नत नहीं थे नाम को हम बोले भी है ना, चुपके कहे बोले करे तो आए हैं। तो चलो उसकी तरह अल्लाह की रहमतें और बख्शिशें बुजुर्गों को सबको जो हम मिलती जा रही, हम लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे। आए लोग लट्ठा ऐसा फिराए, सब अलम बिलम छोड़कर भागते चले। कानून है इस्लाम का, सीधी बात, पहले तुम जबान से बोलो, सुनो अच्छा है, नहीं तो ताकत से बोलो। सरकार फरमाती ये ताकत, बोले सुने नहीं तो ताकत दिखाए नहीं। तीसरी बात भी बोले, आती मेरी उम्मत ऐसी रहती है, देखने को क्या है, और शायद पैजामा तो पहने रहती उजला, लेकिन दिला में क्या भी नहीं रहता, हिम्मत नहीं रहती। इस बात को उनको कम अज कम ऐसा तो करो कि ना दिल से बुरा समझ को गुजर जाओ कि ना। वो है वो स्टेज में हम लोग तीसरे स्टेज, हर जगह तीसरी सब औरतों की ये भी याद रखो तुमने क्या, अल्लाह माफ फरमाए। बात तो चले, दूसरी बात रखता हूं खासकर जहन में रखने की, मन्नतें मांगना या औरतों की आदत है। मर्दा बोले तो औरतें बोले तो मर्द सुनना भी उनकी आदत है, मगर काम हो जाने के बाद मन्नत पूरी करना भूल जाते। काम होगा पनी आए तो गाल भी पार कर अंते करते हैं, मन्नत पूरी नहीं करते। कानून है अल्लाह का और इस्लाम का, पैगंबर के अहकामात हैं, जब कोई मन्नत मांगो तो उसे पूरी करो। एक औरत आई आपकी बारगाह में, हल्की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मेरी अल्लाह सेहत अता फरमाए तो मैं इंशाअल्लाह पिराने पीर के नाम पर ये नियाज करूंगी, लोगों को खाना खिलाओ। ये बुजुर्गों को हाथ उठाने की देर, हाथ उठाने की देर, इनके जद्द अमजद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ये फैज़न मिला है, उनकी आल औलाद को। सरकार जब क्या सोचते रहे, या अल्लाह काबे को मेरा किबला बना दे, ये इब्राहिम के मकाम को नहीं, सुलेमान जो बनाए मस्जिद अक्सा उसे नहीं, ये मेरे जद्द काबा बनाए हैं, उसको मेरा किबला बना दे। सोचते रहे, खुदा ने कहा मेरे हबीब जबान को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, निगाह उठाओ काबा बदला देना। ये शान उनकी आल औलाद में भी मौजूद है, मगर लेने के लिए हमारे पास सही अकीदा, सही दिल, सही नियत, सही जज्बा नहीं। हम गए तो क्या है, आया कभी घर में चूक के क्या है, रोमड़ा मारती थी, ये करो वो करो, तो आया करने के वास्ते करे हम जाना। ये कहां से मिलता था, सिद्के दिल से करो तो उसके बाद देख लेते हैं। तो औरत क्या अच्छी हो गई, करी नहीं, मर गई, वो मन्नत पूरी न करने का नतीजा। आपके फर्जंद आपके बाद सज्जादा नशीर हुए, हजरत ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शाह अब्दुल लतीफ सानी ज़ौक़ी अलैह रहमतुल्लाह, रात ख्वाब देखते हैं, मस्जिद है वेलूर की, और शहर में एक बुजुर्ग टहल रहे, तीनों गए, ख्वाब की बात, जाकर कहे बोले करे तो मुलाकात किए तो बोले वो बुजुर्ग मांग बेटा क्या मांगता है, मकाम खुदबियत अता फरमाइए। अल्लाह फजल फरमाया, आपको खुदबियत मिल गई। खुदबियत क्या है मैं समझा चुका हूं, पूरी दुनिया उनके कब्जे कुदरत में, कुदरत तमाम उनको इख्तियारात दे देती है, आने वाले जाने वाले जितने भी क्या बातें हैं वक्त से पहले उनके सामने मुख्ताबर हो जाते हैं और वो बोल देते हैं। बेदार हुए नींद से सुबह को अपने वालिद मोहतरम कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये वाकया सुना, रात में ख्वाब देखा तो वो लोग टहल रहे थे,
میں جا کر کیا مجھے بولے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضور ہمیں مقام قطبیت عطا فرمائیے. اللہ فضل فرمائے آپ کو مل گئی. جاؤ دیکھیں قطبیت تو ہمیں پہلے ہی سے کیا تو عطا ہو چکی ہے. اگر کچھ اور مانگتے تو بھی مل جاتا. وہ معشوق ربانی قطب اعظم حضرت عبد القادر جیلانی تھے. یہ اکابرین اور بزرگان دین بغیر تمنا کیے کہ ان کے خوابوں میں آتے جا رہے, ان کو فیض پہنچاتے جا رہے. کیوں؟ وہ اس قابل ہے. یہاں مانگ مانگ ماما تو زبان پتلی ہو جا رہی ہے, ہاتھاں دکھنے ٹوٹ کو جا رہی ہاتھاں ہڈیا کیا بولے کر تو لگڑ کو کیا گھسے جا رہے, مگر کیا بھی ہو. کیوں؟ وہ مانگنے کا سلیقہ تمیز نہیں آئی. وہ سلیقہ وہ جذبے کو مانگو, اللہ کیا نہیں دیتا دیکھ لیتے. آپ کے فرزند حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ, مہدی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت کے پاس ٹیپو سلطان کچھ نذرانے دے کر اپنے ایک مرید کو بھیجے, جا کر بولو حضرت سے یہاں آنے کی دعوت دو, یہ نذرانہ پیش کرو, حضرت کو آنے کے لیے میرا معروضہ پیش کرو, آ کر یہاں دعا کر کے جاؤ. بولو آپ کے قدم سے یہاں کچھ برکتیں آ جائے, سعادتیں آ جائے, رحمتیں آ جائے, یہاں سے یہ انگریزوں کا بول بالا ختم ہو جائے. آنے کے بعد وہ نذرانہ پیش کیا, اس کے بعد ٹیپو سلطان کا معروضہ پیش کیا. حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا ذہن لگاؤ, 6 ماہ کے بعد ٹیپو سلطان کی سلطنت ختم ہو جائے گی. میں اگر اس وقت آ جاؤں گا, وہاں کے لوگ کیا بولیں گے, یہ خدم کہاں سے آیا تھا کہ ان کا آیا سلطنت برباد ہو گئی. دیکھو یہ میرے نام پر انہوں الزام رکھیں گے, میں یہ الزام لینا نہیں چاہتا. یہیں سے بیٹھ کر دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ. اللہ کا فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے, اور اس کے فیصلے کو بدل دیتا. فیصلہ ان کا رہا ہے, اطلاع ان کو مل رہی, وقت ان کو مل رہا ہے, وقت بتایا جا رہا ہے, ٹائم بتایا جا رہا ہے, کیا ہونے والا وہ بتایا جا رہا ہے. یہ ساری کیفیتیں بتائی جا رہی ہیں. آج ہم سید الانبیاء کے متعلق سوچتے ہوئے یہ آج کیا ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کو وہ بات معلوم نہیں تھی, یہ بات معلوم نہیں تھی, یہ بات معلوم نہیں تھی, وہ بات معلوم نہیں تھی. ارے مرکز نبوت ہے, مرکز جان جگر ہے, ان سے یہ چیزیں تمام لوگوں کو عطا ہوئی ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ یوتی و انا قاسم, دینے والا تو خدا ہے اور خدا مجھے کیا دیا ہے کسی کو معلوم نہیں. انا آتینا کل کوثر, کچھ بھی رکھ لیا نہیں, سب مجھے دے دیا. اس کا ترجمہ سیدھا سادہ ہے کہ میں کیا کیا کچھ کر لیتی ہوں, وہ بہت دیا, یہ دیا, سمجھ میں نہیں آتا. موٹا ترجمہ کیا, سب دے دیا, اپنے خزانے سب دے دیا. دینے کے بعد بولا کیا بولا, بولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا, کیا بھی تم سے ہو جائے, کیا بھی. اب اس میں یہ وہ کرنے کا بولنا, کیا بھی ہو جائے تم میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, وہاں جانا. سوچے تو پیچھے تو بولو, انجانے کی شرک کرنے کی نہیں رکھا, اللہ کے پاس جانا. ارے اللہ بھیج رہا ہے تو قرآن پڑھ لے, اللہ کے نیک بندے پڑھ لے 5واں پارا, تمہیں معلوم ہو جاتا. نہیں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے بھائی, یہ پڑھنے سے معلوم نہیں ہوتی. ہر ایک بات بتاؤں, اگر پڑھنے سے ہر چیز آتی تو ہر آدمی ڈاکٹر بن جاتا. کتاب پڑھ لیتا ہے, معلوم کر لیتا ہے, یہ چیز ڈالنا, وہ چیز ڈالنا, یہ گولی دینا, وہ گولی دینا, کہاں انجیکشن ٹھوسنا, وہاں نہیں ٹھوسنا. نہیں, ڈاکٹر بن جاتا نا. کتابوں سے آیا کسی کو علم, پڑھنے کی کتابیں انجینئر بن جاتا. پڑھنے سے آدمی عالم بن جاتا. عالم بن کے ایک فتنے کرنی, کرامتوں کا کہیں انکار ہے, معجزات کا کہیں انکار ہے. پڑھنے والے وہاں انکار کرنے سے
ना भाई को हसनी लोग इनको पूछ के बोलते बाद में कौन इनकार करने कौन नहीं। करामत और मौजूदे की तारीफ ये है जो बात तुम्हारे जहन में नहीं आती वो दुनिया में हो जाती है, उसको या तो मौजूदा बोलते हैं या करामत बोलते हैं। पैगंबर से हो जाए तो मौजूदा, वली से हो जाए तो करामत। जमीन पर कह रहे हैं आका, इशारा कर रहे हैं, दो टुकड़े हो रहा है चांद, अकल में बात नहीं आती मगर मौजूदा हो रहा है। हाथ के इशारे से सूरज निकल को आ रहा है, अकल मानती नहीं है मगर मौजूदा हो रहा है। अरे झाड़ निकल कर कदमों में आकर सिमट रहे हैं, चूम रहे हैं, झाड़ निकल कर आ रहे हैं, हो रहा है मौजूदा मगर अकल मानती नहीं। जा रहे हैं कलमा पढ़ने पत्थर, अकल मानती नहीं मगर मौजूदा हो रहा है। ये अगर वली से हो जाए उसे करामत बोलते, अकल में आती नहीं, अकल की तरह लेकर चले तो कहां से समझ में आती। इसे चाहिए तो अकीदत चाहिए, ईमान कामिल चाहिए, और यहाँ सिद्क को सफा चाहिए, अकीदा चाहिए, मजबूत अकीदा चाहिए, और असल बुजुर्गों की मोहब्बत चाहिए। जैसा कि मैं बयान किया, मोहब्बत कैसी होना, कैसी होना वो भी बता दिया। आका को देखकर क्या क्या कहा लोगों ने, ऐसी होना, मोहब्बत दिखावे कि नहीं होना। सामने रख तुम आओ बैठो, ये करो वो करो वो करो, जाते शुरू आको दिखाना डालने तो गाला निकल। ये है तुम्हारे पास फितरत नहीं, ये छोड़ डालो, ये काम आने वाली चीज है। ज़ौक़ी रहमतुल्लाह की बात अर्ज कर रहा था, महदी रहमतुल्लाह की बात अर्ज कर रहा था। आए टीपू सुल्तान बोले भूल जाए, 6 महीने के बाद सल्तनत खत्म। कहां से मालूमात होती है उनके ढोल को भी नहीं पहुंचते सैयदुल अंबिया की, उनकी ये शान है। आने वाले जाने वाले गुजरे हुए अंदर के बाहर के सब बातें उन्हें बता दी। सरकार का आलम क्या होगा भाई, वो रात को तो कोई समझा नहीं, आपने खुद फरमाया लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी या अबा बकर, अबू बकर मेरी जात को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे रब के। उन बनाया उम्मीद जानता है, जो बनाया मशीन को उम्मीद न जानी से दूसरे जानने वाले तो जाने कोशिश करेंगे, कट हाथा कट हो जाती। चूहे का पिंजरा है, जरा जाके लगाओ उल्टा सीधा पड़ा तो उंगली पर उंगली कट हो जाती है। चूहे का पिंजरा लगाना आता नहीं हमला, ये बड़ी बात है। कहीं ये हज़रत महदी रहमतुल्लाह अलैह वो रात नमाज अगर शुरू कर देती, नमाज पढ़ना अगर शुरू कर देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे उनके सामने होते थे। आज हमें रकात बने तो घर याद आता है, जोड़ी याद आती, वो सामना क्या क्या बोली थी बाजार से ले आने की याद आती। अब वो लेके जाना बाद में तो फूटती है तो हर कोई दिल के मदीनों आए, बैठ गवा को रस्सी लाई गती, फिर गाला मासब के कान लाते हो तो ये नमाज पढ़ने रकात ना भर। इमाम के पीछे काम बेचारा जिम्मेदारी लिया तो 4 रकात पढ़ा देता, फिर होती तुम्हें ये अकेले पढ़ के ये सोचो 4 के 5 होती, 5 के 3 होते, हो रही नहीं। ये थे तो हमारा हाल, मगर ये बुजुर्ग रकात बांधते हज़रत महदी रहमतुल्लाह अलैह इशा की बांधे हैं, पीछे मुक्तदा हैं। अब यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तर्जुमा ये ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तर्जुमा इसका ये पढ़ रही, उसके जरिए सामने हैं, रिपीट ये करते जा रहे, आधा घंटा 3 घंटा घंटा 2 घंटे 3 घंटे इशा की नमाज पढ़ ली। फजर की अजान हो रही, मस्जिद सब अपनी अपनी पढ़े को चले गए, नए वाले बड़े में पढ़ाते नहीं करते नहीं, किसी में पढ़ने को चलिए रकात थोड़ी पढ़िए चलिए। एक बंदा भी अगर उनके पीछे रह नहीं जाता, मालूम है अल्लाह के नियाज बंदे, अल्लाह के फैजान तुम पर क्या गुजरता है पता। अल्लाह किसी से नवाजता मालूम, लेकिन लेने वाला रहा तो सिर्फ ख्याल देर बच्चा था, देर करे तो गालियां देती, देर के काम मर गए थे या खुद क्या बाहर बंदे में बाहर मरे थे, यहाँ मरना नहीं क्या।
कंटेनर के हाथ मत जा, बाहर बढ़ो, बाहर तो इतनी देर कहाँ बड़े थे, जल्दी आओ तो जल्दी आओ, कोई भी मिला नहीं क्या, अरे फिर भल्ला हुआ, कैसा रहना मरबाना, कैसा नहीं, अल्लाह बेहतर ज्यादा अकल दिया क्या है कि अल्लाह बेहतर नहीं, माफ करना सोच सुन रही, बाद में जाने तो है मेरी हालात है, अल्लाह माफी चाहता हूँ माफी से। तो हजरत माही रहमतुल्लाह अलैह पढ़ना शुरू करे, सुबह की अजान हो गई तो सब एहसास हो, ये पढ़ते थे भाई नमाज में, मगर हम भी पढ़ते हैं नमाज में, हमारी हालत क्या, सोचो हमारी नमाजों का क्या। बहुत अकल पड़ा है, अभी लंबा पूरा पड़ा है। दूसरी बात याद ही तो अर्ज कर रहा हूँ, बात अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आ गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजें कितने फर्ज करा तुम 50 में, हमें पढ़नी कितने, जरा सोच कर देखो, हर नमाज में नफिल नमाज है, चाक की नमाज है, इशराक की नमाज है, खुसूफ की नमाज है, कुसूफ की नमाज है, अवादीन की नमाज है, सलातुल हाजा है, सलातुल कदा है, सलातुल फजल है, तहज्जुद है, कि जितने नफिल नमाजा है इन तमाम को जोड़ेंगे तो तमाम के तमाम 50 होती। सब पहली मरतबा सुनो तो मैं भी पहली मरतबा बोलूँ, ये आप जैसे बुजुर्गों का फैजान है, अल्लाह जब में डाल रहा है, वरना मेरी कोई हकीकत नहीं मिल रहा है, मैं बादब अर्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलने वाले ये तुम्हारे फैजान है, तुम्हारी संगतों का सेवकों का, अल्लाह मुझे ये नहीं होता, अल्लाह फजल फरमाए, आप लोगों की उम्र में खैर बरकत अता फरमाए, ये तमाम जोड़ेंगे तो 50 फुट मेरा, अब जोड़ने का वक्त तो नहीं, सिर्फ इशारा दिया जोड़ लो आप लोग। अब इस वक्त तो खुदा ने कहा मेरे महबूब 5 तो तुमको ले लिए हैं तुम, लेकिन 85 का कहा सवाब दूंगा, तो ये भी अगर कहिए तो वो आ जाता मेरे लाइन, मगर क्या जरूरत तकाजा कर रही है, इनको पढ़ो उसे राजी करने के बाद, सजदा करना तुम्हारा काम, अता करना ये मेरा काम। हजरत मूसा के जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम जब रब से क्या मांग रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मूसा तेरे बाद मेरे हबीब की उम्मत आएगी, ये तमाम इलाका जो भी तू देख रहा है, इसके बाद के इलाके जो भी हैं, ये बागात समंदर ये जो भी है, मैं उनको अता करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से जाकर बोले, उम्मत बोली अल्लाह से अर्ज करो और हमें अता फरमाए, ये सिर्फ हमें दे, इसकी हुकूमत हमें दे दे। गए जाकर अल्लाह से बोले मालिक मेरी उम्मत की ख्वाहिश अता फरमा। खुदा फरमाता है सुनो तुम्हारी उम्मत को देना, अरे जन्नत की ग़िज़ा दिया, ये बदतमीज पालक होना, अदरक होना, लहसुन होना, भाजी होना, तरकारी होना, जन्नत की नेमतों की बेकदरी की, उसको ये तमाम चीजें देना, मैं उस उम्मत को दूंगा जो आने वाली है। पैगंबर तुम बुलाए किसके लिए, अमालिका के मुकाबले के लिए, बोले फजबन रब का फकातिला इन्ना हम कायदुन, जाओ तुम तुम्हारा खुदा लड़े, हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। उस उम्मत को देना, मैं उस उम्मत को दूंगा, रुकू करेंगे तो सुभान रब्बियल अजीम मेरी तारीफ करेंगे, सजदा करेगी तो सुभान रब्बियल आला उसको चाहे दूंगा, दुआ करेगी हाथ उठाएगी तो रब्बना आतिना फिर दुनिया हसरतें बोलेगी, मैं उसको अता करूंगा, इसको अता नहीं करूंगा। समझ रही हैं, ये वो दुआ करने वाली उम्मत है। अगर दुआ कर ले तो महदी अरे रहमा के पीछे मालूम नहीं अल्लाह किन नियामतों से सरफराजी अता फरमा देता, मगर क्या बन जाती अल्लाह बचकर जाने कर लेना चाहिए। मगर एक बात और यहां समझ में आती है, वो बोलना मेराज की जब सरकार जा रहे थे, जिब्राइल से बोले आओ मेरे पास आगे सिदरा, क्या बोले जिब्राइल, ये बड़े तो पैर पर ये अल्फाज को छोड़ दीजिए, इसके पीछे छुपी हुई हिकमत की तरफ जाएंगे। जिब्राइल जानते थे अगर जाऊंगा तो बराबरी हो जाए,
हकीकत ये है, जाऊंगा बराबरी हो जाएगी। अल्लाह सिर्फ आपको बुलाया है, मुझे नहीं। पैगाम क्या है? आपको दिया है आने का, मुझे नहीं। इस बात को चाहे जिब्रील रहेंगे, ये छुपी हुई हकीकत है। इस वक्त बराबरी का तस्वर है। यहाँ भी एक मामला, यहाँ भी एक मामला। अगर अल्लाह देना चाहता तो किसी एक को तौफीक दे देता था। यहाँ एक ही बस है, ये वली क्या है, तमाम को क्या है, अपना निजाम चलाने के बाद से फिर दोबारा है तो कहीं टकराव ना हो जाए, इसलिए तुम चले जाओ। आपके वालिद, आपके फर्जंद अजमन, आपके बाद हजरत खुद अली रहमतुल्लाह, बहुत बुजुर्ग हस्ती बाबा। बारह ये वाकया सुनाया हूँ, मगर बात अमुख्त के है ध्यान में रखने की। क्या है अमुख्ता? हजाम आकर आपको हजामत करने के लिए आया, वक्त से पहले जुमा को आने के बजाय बोला मैं हजाम जुमा को आ जाए, नहीं जुमा को मैं नागुर शरीफ जाना है, वहां का उर्स है, वहां का उर्स है। उर्स में जाने की ख्वाहिश हजाम को है। हजाम जाता है साहिब मजाज से फैज लेना, अगर हो तो वहां जाना। क्यों? खास कर रहमत खुदावंदी का इस मकाम पर मौजूद रहता है। आज इतने ऐलानात हमारे हुए, हर मस्जिद में हुए, पूरे मुंतकिल में हुए। तमाम लोगों को खुदी को हाथ लगाकर बोले, इतना दी गई है ना। अब आप लोग सोचो कितने आए हैं, कितने नहीं आए। क्या हजाम क्या है बोले करे तो, वो क्या है बोले करे तो अजमतों में, मरतबों में, या हम उसका जहन देखो, हमारा जहन देखो। समझो मेरे बाबा, ये वक्त है समझ कर अपनी जिंदगी की इस्लाह और अपने ढकत की इस्लाह करने का। सिर्फ बुजुर्गान दीन है, इतना तो मरकज दीन आ रहा है। बुजुर्गान दीन उनका फैज, उनका फैज, इससे हटकर काबिल नहीं। समझो तो वजह तुरंत खुदा फरमा, मेरे महबूब, ये बात है मेरे महबूबिन की याद दिलाते चले जाओ। मेरे महबूब बंदों का तस्करा करते चले जाओ, उनके आदात को बताते जाओ, उनके अतवार को बताते जाओ, उनके अखलाक को पेश करते चले जाओ, उनके सिफात को बयान करते चले जाओ, उनकी नमाजों को, उनके हर अदा को बयान करते चले जाओ। शायद से एक सबर करने वाला भी इस जगह पर आ जाए तो उसकी जिंदगी कामयाबी से हम किनारा हो जाए। तो बेलडी रहमतुल्लाह अलैह बोले, नकोबा जाना तो जाओ ना, नहीं जाना ये मेरा फैसला, तुम्हें बना लेना है या नहीं, बोलो मैं चले जाता। ये होना अकीदा, अकीदा ये होना बुजुर्गा नहीं। चले गए, यहां से चले गए, जाता रहा तो जाने से पहले बोले हजरत तू जा रहा है, वहां जा तो वहां एक झाड़ दिखता है, वहां एक बुजुर्ग बैठे होते सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, उनको एक चिट्ठी देते जा। अच्छी गया, वो बुजुर्ग बैठे थे, देखा तो चिट्ठी पढ़ को वो हंसे, चिट्ठी पढ़ को हंसे। फिर उन्होंने चिट्ठी पर लिखे, ये बात ध्यान रखा, क्या करे उन्होंने लिखे लिखने के बाद 2000 फोन दिए थे उनको, 2000 बात या तो कर लिया, आया वो लोग को, आपको उनको दिया, इन्हें पढ़ को हंसे, गुस्सा आया, दीवाना समझी तुम्हारी दिया तो उन्होंने हंसे, हमको लग जाती है। कुछ दिन की जियारत को गया था, उसे शरीफ को गया था, उर्स क्या है विशाल के बाद में होता था नहीं। हम वहां बैठे हैं, बस सुनो, जहन में रखो, जिनके उर्स को छू गया था वो हजरत मजाक से निकल पाते हैं बैठी। मैं उनको बोला था तुम्हें यहाँ आकर बैठने के बजाय वहां तुम्हारे मजार के पास जो गलत काम करती और काम मर्द वगैरह, उनको रोकने में क्या बिछाता हो। उन्होंने क्या जवाब दी मालूम क्या नहीं, उन्होंने जवाब दी
वेलूर के इतने बड़े कुतुब होते हुए तुम्हें एक हजाम को नहीं रोके तो मैं यत्ते हजामा को कैसा रोकूं? सोचने की बात अब यहाँ है, उन मजार में नहीं है, वहां बैठेंगे तो वेलूर में बैठ के मजे की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद्दे मसनून में एक हदीस पढ़ा, इत्तक़ू बिफिरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह। तर्जुमा आम तौर पर ये बुजुर्ग यहाँ बैठी हैं, क्या करती? मोमिन की नजर से बचो, अल्लाह के वली की नजर से बचो, ये तर्जुमा उसका। मोमिन कामिल कौन? अल्लाह का वली होने का, ये तर्जुमा करना है। अल्लाह के वली की नजर से बचो, इसलिए कि वो अपनी नजर से नहीं, खुदा की नजर से देखता है। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस, जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं। आंख उसकी होती है, देखता तो मैं बैठकर खुद भी बोलो, कोसी आंख से देखनी, खुदा की निगाह से देखनी। खुदा की निगाह के सामने कोई चीज छुपी हुई है नहीं, अंदर है तो भी देख रही है, बाहर है तो भी देख रही है, कहाँ है तो भी देख रही है। तो जब तो खुद वेलों की निगाह वो बन चुकी है, कादर वली कहाँ है तो देख रहे हैं यहाँ बैठकर वेलों में, उनको देख रहे, इनको देख रहे, तो वो दोनों की निगाह वो बन गई है। इस तको भी फराते चलना है, अल्लाह के वलियों की मदद से तो समझेगा। अब यहाँ एक बात, खुद वेलूर का फैजान उस हजाम को पहुंच रहे, उन गया था मजार से फैजले को नहीं, पुरुष गया था ना भाई, मजार में फातिहा का शक्ल लेता, क्या करता, सुबह मजार के पास जाता उनसे। लेकिन हजाम की क्या किस्मत देखो, खुद वेलूर खुद खादर वली बाबा से मुलाकात कर, ये इनका फैजान। खादर वली बाबा का फैजान देखो, इस हजाम को क्या है, खुद वेलूर के फैजान से क्या है, मिला दिए। वेलूर के खुतुब है, उनके छोड़ के तू मेरे पास से आया। ये बुजुर्गों का फैजान है, उनके पास जाते रहे आते रहे तो मिलता भाई, नहीं गए तो हल्खान को आओगे तो ले लो, मुझे काम है जरा, दुकान में खाद्य खोल नहीं, बच्चा खोल नहीं, कोई में नौकर आया नहीं, कहां से मिलता फैजान? इस वक्त तो मुरीद बन को, जो मुरीद बनते वक्त हमारी हालतें थे, आज भी वो हालतें हैं। क्या है? तेल निकालने वाला खोलू क्या करता, हमको पट्टा डालकर खोजे को खोदत न बनते थे, नहीं दूसरा कब बनते खुलगत नहीं, बैला नहीं ले खुलगत। तुम्हें गलत कर दी, गलत करो ना तो मेरे सामने की जी तेल के घाने, जी तेल के घाना फिराते वक्त खुलगे को आंख पर पट्टा डाल को फिराते, सुबह से शाम तक का फिराता सोचता, सुबह से निकला हूँ, मैसूर बेंगलुरु से पार हो गए हैं, सो तेल जब निकाला तो पट्टी निकाला तो सुबह को कहाँ फेराता हूँ, वो हालत हमारे। वो बुजुर्गों का फैजान है, हमको तकालीफ से बचा रहा है, ये उनका फैजान। जुनैद बगदादी का एक मरीज बुरा ख्याल करे, बुरा ख्याल किया, अजाब अल्लाह का इताब नाजिल हुआ, टालना शुरू करे। जुनैद बगदादी कान की ही शब्दों में सरकल हुआ, 3 दिन के बाद अच्छा हुआ, आकर क्या है मालूम पेश किया, हुजूर ऐसा मैं सोचा था, ये गलती की वजह से मैं अजाब में मुब्तला था, आज अल्लाह का फजल, दुआएं करता करता अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दिया। वो नादान, जब से तुझ पर क्या है ये अजाब नाजिल हुआ, मैं कष्ट से मालूम करने के सद्दे के सब तेरे लिए उठाया ही नहीं, मेरी दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह तेरे अजाब से दूर कर दिया।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अफजलुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा। ये दुनिया से क्या भी आता है सुनोगा तो ठीक से सुनो। जो मैं हूँ जो तुम्हें है तुम्हें होता है। हमें कहाँ हूँ हाँ तुम तो खोजे हमें कहाँ हूँ हाँ इस वक्त इतना समझो। ये क्या है कि तो चल बातें ये बोलने से फैलना खुशना, सामने बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, वहां जाना नारा, यहाँ जाना, ये बातें क्या भी काम को आते नहीं। पेश कर गाफिल अमल अगर दफ्तर में है, क्या बात है। खिदमत दीन कर, खिदमत मखलूक कर, लोगों की खिदमत कर, टूटे हुए दिलों को जोड़, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। क्या बात है। आज इन खिदमतों की जरूरत है। आपके फर्जंद अर्जुमन हजरत सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह अदा हुई है जी। नमाज